बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो लास्ट क्लास हम पढ़े थे रेजिस्टेंस इन सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा, करेक्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या है? तो टुडे वी आर गोइंग टू सी, लेट मी राइट द टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू सी रेजिस्टेंस इन parallel. Okay, so resistance in parallel means we are connecting resistance one below the another. So this type of connection is called resistance in parallel. Okay, so this is R1, this is R2 and this is V. ठीक है, तो what is V? I told you in the last topic, V is potential difference. Okay, now if you see in parallel connection, this resistance is in direct contact with the potential difference, direct contact, and this R2 resistance is also in डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लियर? इफ़ यू सी, देखिए ऐसा अगर देखेंगे तो आपका जो करंट है वो यहाँ से आएगा, देखिए ऐसे करके जाएगा। सो करंट आई विल कम हियर, करंट आई इज देयर, सो लाइक दैट इन रेजिस्टेंस R1 करंट आई विल फ्लो, करेक्ट? ओके, एंड इफ यू सी रेजिस्टेंस R2 is also in direct contact with the potential difference. Okay, that means both the resistance are in direct contact with the potential difference. That means if this resistance is not working, okay, then also R1 will continue getting current from the voltage source, and if this resistance is not working, then also R2 will get current from the voltage source. Clear? door band kar do. So like this is the advantage of parallel connection, is that each resistance is in direct contact with the potential difference. This is the very important point you should understand, correct? In parallel connection, in series connection, it was not like that. The current goes to first resistance, then the same current goes to second resistance, and the same current goes to second resistance. Clear? But here each resistance is in direct contact with the potential source. So even if one resistance is not working, then also the other resistance will continue working. Okay, तो एक अगर if one resistance is sleeping also, then also no problem, the other resistance will continue working. So this is the advantage of a parallel connection. So this V will drop across R1 as V only, not V1 like series. V, and here also it is V. Okay, so this is also V and this is also V, because since each resistance is in direct contact with the potential source, so if this is V, this will also be V. यानी अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट होगा, ये भी 10 वोल्ट होगा, बिकॉज दोनों रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट हियर द करंट कमिंग फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स इज I, ये भी I, यहाँ से I, यहाँ से दो टूट जाएगा, ऊपर वाला I1 और नीचे वाला I2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 10 एम्पियर, इफ इन द अप इट इज गोइंग 6 एम्पियर, देन इन द डाउन सर्क्यूट इट विल बी 4 एम्पियर, 6 + 4 = 10. Okay, so that means you got one relationship, that I is equal to I1 plus I2. Okay, I equal to I1 plus I2, because I only gets distributed among two branches. So here also I1, here also I1, they got, sorry, this is I2, they got united, you will get back again I, this is I, and inside the potential difference it is going I, correct? So I, ऊपर I1 नीचे I2, I1 I1 I1, I2 I2 I2, फिर दोनों मिलके I. Clear? Now let me give you some example. This is 10 एम्पियर, ऊपर 6 नीचे 4, 6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 6 + 4 10 अगेन बैक 10 दिस 10 10 10 यानी अगर 10 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है तो आपको 10 वोल्ट बैटरी के अंदर जाना है, सॉरी 10 एम्पियर इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल then same 10 ampere should return back to the negative terminal. This is the rule. Okay, if 10 ampere is starting from the positive terminal, the return back should be 10 ampere. बस यहाँ आके वो टूट जाता है, ऊपर 6 एम्पियर नीचे 4 एम्पियर। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ऊपर 2 नीचे 8 हो सकता है, ऊपर 7 नीचे 3 हो सकता है, लेकिन ये दोनों को प्लस करके I1 I2 को प्लस करके आपको क्या मिलना चाहिए, I मिलना चाहिए। दैट मीन्स I से निकला I1, I से निकला I2। क्लियर है भाई? चलिए, सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज I क्या बोलेंगे, करंट इन सर्क्यूट। व्हाट इज I1, कम ऑन टेल मी I1, करंट थ्रू R1। What is I2? Come on, tell me. Current through R2, right? Okay. Now all the denotions are clear. Now again, same as I told you in series connection, we have to apply Ohm's law. At every resistance, we have to apply Ohm's law. Now see carefully. So I can say, first, tell me why. अप्लाई, बोलिए, Ohm's law at R1. Here we have to apply Ohm's law. What is Ohm's law? Weir law. Weir. So what is the potential drop across R1? V. What is the current? I1. What is the resistance? R1, my dear student. This is number 1. Okay. Now similarly you will do. Come on, tell me. आप बता सकते हैं, बिकॉज आपको लॉजिक समझ में आ गया कि हर रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाना है, बाद में सबको कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बोलिए, कम ऑन, अप्लाई ओम्स लॉ एट R2। तो व्हाट इज V रिमेन्स V, I2 R2, दिस इज नंबर 2। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को मिला के, ओके, R1 R2 विच इज इन पैरेलल को मिला के हम बनाते हैं एक नया रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे RT, एंड दिस इज द व्हाट, V। सिंस देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंस, all potential difference will drop against RT. Okay, from here the current starting is I, entering is I, coming out is I, and entering back is I. Okay, so what is RT? RT is total resistance. ठीक है भाई, चलिए, आपको ओम्स लॉ यहाँ मैंने यहाँ पे लगा दिया, ओम्स लॉ यहाँ पे लगा दिया, ओम्स लॉ यहाँ पे लगाना है। तो क्या लिखूँगा, अप्लाई ओम लॉ एट RT। सो दिस बिकम्स V इक्वल टू IRT, राइट। नाउ एक काम करते हैं, इसको 1 नहीं देते हैं, यू गेट I1 फ्रॉम हियर। I1 निकालती है। व्हाट इज I1? I1 इज V बाई R1। I1 आ गया बच्चों, यहाँ से निकालेंगे I2। I2 क्या आएगा बच्चों? V बाई R2। पहले लिखना था, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, देख लीजिए। ये I2 है, V बाई R2। अब यहाँ भी निकालते हैं I, तो I क्या बन जाएगा बोलिए, V बाई RT इक्वल टू I। ठीक है बच्चों, तो मैंने मेन 3 चीज़ निकाल लिया, यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I। ठीक है, अब बताइए क्या लगाएंगे, V नो दैट I इक्वल टू I1 प्लस I2। वहाँ पे था V इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ पे है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I क्या आ जाएगा भाई, I की जगह में लिखेंगे V बाई RT। देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिए, I1 क्या है, V बाई R1, ये क्या है, V बाई R2। ठीक है ना। नाउ यू राइट V बाई RT, टेक V कॉमन माय डियर स्टूडेंट,
you will be getting 1 by r1 plus 1 by r2. ठीक है, v cancel. तो here comes the last answer man. 1 by rt equal to 1 by r1 plus 1 by r2. Okay, so what is this? Reciprocal of total resistance. What is this? Reciprocal of r1, reciprocal of r2, and this is sum. चलो मिला के बोलिए क्या आएगा? Reciprocal of total resistance is sum of the reciprocal of individual resistance. यानी आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालना है और ऐड करना है, तब जाके आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा. राइट? नहीं, मेरा लास्ट सेंटेंस गलत है. तब जाके टोटल रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तब जाके आपको रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा. क्लियर है ना? तो यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करिए. जैसे 2 था r1, r2 3 था. 2 का रेसिप्रोकल कितना है? 1/2. और 3 का रेसिप्रोकल कितना है? 1/3. इन दोनों को ऐड करिए, यू विल बी गेटिंग 6. 3 + 2 यू विल गेटिंग द आंसर 5/6. ये 5/6 क्या है? टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है. तो यानी ये 5/6 को आप बोलेंगे 1/RT. ओके, नाउ यू टेक द रेसिप्रोकल, दिस बिकम्स 6/5. दिस बिकम्स RT/R1. RT/R1 इज RT. सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है ना? तो क्या लॉजिक है कि आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करना है. क्लियर? दोनों को ऐड करना है. क्लियर? जो आंसर मिलेगा वो टोटल रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा. ठीक है? तो दैट मीन्स R1 का रेसिप्रोकल 1/R1, R2 का रेसिप्रोकल 1/R2. दोनों को ऐड करिए. 1/R1 प्लस 1/R2 इज व्हाट? 1/RT. इज 1/RT. तो वंस अगेन R1 का रेसिप्रोकल 1/R1, R2 का रेसिप्रोकल 1/R2 और टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/RT. तो ये है माय डियर स्टूडेंट. तो ये क्या है? Reciprocal of total resistance, reciprocal of R1, reciprocal of R2. This is sum. So we can say that the reciprocal of total resistance is sum of the reciprocal of independent resistance. So this is the result you are getting in what? Parallel connection. Series में क्या था? Series में क्या था? Total resistance is sum of the individual resistance. यहाँ पे क्या है? Total reciprocal of total resistance is sum of the reciprocal of individual resistance. तो ये है माय डियर स्टूडेंट पैरेलल कनेक्शन. ठीक है? तो देखिए वंस अगेन मैं रिवीजन कर देता हूँ आपका. R1, R2 both the resistance are in direct contact with the potential difference. Therefore this potential difference will drop across this R2 as V, R1 as V only. ओके, देखिए ना, मैं इसको छुपा देता हूँ. देखिए R1 ऐसे आके डायरेक्टली कनेक्टेड है. देखिए V से. अब मैं इसको छुपा दिया. R2 देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है. यानी R1 को R2 से मतलब नहीं, R2 को R1 से मतलब नहीं है. ठीक है? करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जैसे सपोज 10 स्टूडेंट आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग. डोंट यू फील 10 स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंटली लिसनिंग माई वॉइस? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, इवन इफ सपोज 2 स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, ओके, द रेस्ट 8 स्टूडेंट विल कंटिन्यू गेटिंग माई वॉइस. उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा. तो यानी हर बच्चा टीचर से डायरेक्टली जुड़ा है, उसको बोलते हैं पैरेलल. सीरीज में क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई से आई लव माई इंडिया टू फर्स्ट स्टूडेंट. ही विल से आई लव माई इंडिया टू सेकेंड स्टूडेंट. देन सेकेंड स्टूडेंट विल से आई लव माई इंडिया टू थर्ड स्टूडेंट. सो लाइक दैट द इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूज. और बीच में अगर कोई गद्दार हुआ तो वो क्या बोलेगा? आई हेट माई इंडिया. राइट. फिर वो दूसरा बच्चा भी क्या बोलेगा? आई हेट माई इंडिया, आई हेट माई इंडिया. देखिए गलत हो गया. बिकॉज एवरी स्टूडेंट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मी, दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ देयर नेबर्स. सो वॉट नेबर्स विल कन्वे देम, दैट दे विल कन्वे टू देयर नेबर्स. सो सीरीज ऐसा है. करेक्ट. तो पैरेलल में सारे बच्चे टीचर से डायरेक्टली जुड़े हैं. ओके. और सीरीज में बच्चा टीचर से नहीं जुड़ा है, बच्चा बगल वाले से जुड़ा है और बगल वाला बच्चा उसके बगल वाले से जुड़ा है. तो लॉजिक को सिंपल रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है. सीरीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. पैरेलल डायरेक्ट, उसको अगल वाले से मतलब ही नहीं है. अगर बगल वाला सो भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, मैं तो काम करता रहूँगा. क्लियर है भाई? तो ये है पैरेलल.
तो यहाँ पे ये V, अगर तीसरा रेजिस्टेंस होता तो उसको भी V मिलता, चौथा होता तो भी V, सबको V मिलता भाई। उसके बाद यहाँ से निकला करंट I, मैंने बोला I1, I2, फिर I1, I2 मिलके I। ठीक है भाई, बस इतना चीज़ याद रखिए। इस रेजिस्टेंस में व्हाट इज R1, रेजिस्टेंस कितना है R1, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V, करंट कितना है I1। ओम्स लॉ लगा सकते हैं V = I1 R1, यहाँ से I1 निकाल लेंगे, ठीक है, I1 = V/R1। फिर यहाँ पे V = I2 R2, I2 निकाल लेंगे V/R2। फिर यहाँ पे V = IRT, यहाँ से RT निकाल लेंगे ना, V = IRT, यहाँ से I निकालेंगे, I = V/RT। एंड वी नो दैट I = I1 + I2। सारा वैल्यू को सपोर्ट करिए, कॉमन लीजिए, कैंसिल करिए, यू विल गेट दी आंसर। क्लियर? तो कंपेयर करना हमेशा। सीरीज में क्या था भाई आप लोग का, V = V1 + V2। यहाँ पे पैरेलल में क्या है भाई, I = I1 + I2। सीरीज में क्या था, RT = R1 + R2। पैरेलल में क्या है, 1/R1, RT = 1/R1 + 1/R2। क्लियर है बच्चों? बस डाउट है तो ज़रूर मेरे को फ़ोन करिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलल का एडवांटेज क्या है। आपको छोटा सा एडवांटेज तो पता ही चल गया कि इन पैरेलल एवरी रेजिस्टेंस इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियल difference. Even if one resistance is not working, it gets repaired, damaged, the performance of other resistance will not be affected. यानी नीचे वाला गया तो ऊपर वाला अपना मस्त में पिक्चर देख रहा है, पता चला नीचे वाला सो ही गया है। क्लियर है? चलिए और एक बताया तो एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि हम घर में जो भी वायरिंग यूज़ करते हैं दैट इज़ पैरेलल कनेक्शन, दैट इज़ पैरेलल कनेक्शन, करेक्ट। और दूसरा पैरेलल कनेक्शन में ये एडवांटेज है कि सिंस एवरी रेजिस्टर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियल डिफरेंस, दे विल टेक द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट डायरेक्टली फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हर रेजिस्टेंस को जितना करंट चाहिए वो उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस से अपना करंट ले लेगा। जैसे इसको अगर 2 एम्पियर चाहिए, ओके, इट विल टेक 2 एम्पियर फ्रॉम द पोटेंशियल वोल्टेज सोर्स। इफ इट वांट 5 एम्पियर, it will take 5 ampere from the voltage source. So from the voltage source, total 7 ampere of current will start. 7 will start, okay. 2 will go here, 5 will go here. 5 plus 2 is 7. Yani they can take their desired current from the potential difference, from the voltage source. 2 एडवांटेज मिल गया। तो नेक्स्ट क्लास में और भी 2-3 एडवांटेज बताऊंगा अबाउट पैरेलल कनेक्शन। जब पैरेलल का मैं इतना एडवांटेज गिना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सीरीज़ का पक्का क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। दैट इज़ वेरी राइट। चलिए सीरीज़ का कुछ डिसएडवांटेज बता दीजिए क्या है। सिंस ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर, ओके, सो इन दैट केस इफ एनी वन रेजिस्टेंस स्टॉप्स वर्किंग, ऑल द अदर रेजिस्टेंस विल नॉट वर्क, करेक्ट। यानी अगर बीच में कोई बच्चा सो गया तो इन्फॉर्मेशन उससे आगे पास नहीं होगा। क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट, इफ एनी वन रेजिस्टेंस इज नॉट वर्किंग देन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रेजिस्टर विल ऑल्सो गेट हैम्पर्ड, ओके, नंबर 1। नंबर टू क्या भाई, पैरेलल का क्या था एडवांटेज, एवरी रेजिस्टर कैन टेक देयर डिजायर्ड करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड। बट हियर all the resistors, since they are connected one after another, so their current requirement should also be identical. That means if one resistor wants 10 ampere, don't you feel the same 10 ampere will pass on to the next resistor, then the same 10 ampere will pass on to the next resistor. So like that every resistor should take 10 ampere from the voltage source. यानी सबका जो करंट रिक्वायरमेंट है वो 10 एम्पियर ही होना चाहिए। अगर किसी का 10 है, किसी का 1 है, दे कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज फर्स्ट को 10 चाहिए, वो 10 ले रहा है, अब वही 10 को सेकंड में पास होना है। वो 10 जब सेकंड में पास होगा तो क्या होगा, उसको चाहिए 1 रोटी, आपने खिला दिया 10 रोटी, तो क्या होगा, डिसेंट्री हो जाएगा, राइट। तो यानी यहाँ पे 2 रेजिस्टर ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज। सबका 10 है चलेगा, सबका 1 है चलेगा, लेकिन किसी का 10 है किसी का 1 है नहीं चलेगा, उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों, तो आपको कुछ समझ में आ गया
पैरेलल का एडवांटेज और सीरीज़ का डिसएडवांटेज। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ फ़ोन करिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉमन सेंस को ऑन रखिए, फिर देखिए सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज साइंस सब हमारे अंदर में है, राइट? बस हमको लॉजिक बटन को ऑन रखना है। तो वंस वी कीप अवर लॉजिक बटन ऑन, देन द ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग and all the information which is inside you will start coming out. Okay, with this I'm stopping my class. Tata, bye bye.